हेलो कलेक्टिव्स, वेलकम टू एवी गाइडेंस 1111। होप आप सब अच्छे हैं, अपने लाइफ में अच्छा कर रहे हैं। एंड हर हर महादेव। आई जस्ट विश दैट एवरीबडी इज डूइंग ग्रेट इन देयर लाइव्स, एंड I really seek blessings from God, from Mahadev, that everybody should stay abundant, stay blessed with all the love and happiness in their lives. And thank you so much, guys, for supporting me throughout this journey and for just growing our family more with a lots of love. थैंक यू आपका इतना इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए, मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए। एंड अगर इस चैनल पे कोई न्यू है तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, पसंद आती हैं, तो प्लीज लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। Please do like and share the video if you do like it. And for personal readings, one-to-one session, as I always used to say, that it is already mentioned in the description. So you can check it out below, and you can DM me over WhatsApp, or you can DM in Instagram. The numbers and the channel link is already given. So you can reach out whenever you need for the personal readings. And one more thing, like from starting the reading, before doing the reading, I would love to say कि जैसे आपको पता होगा, कार्ड्स हमेशा पॉसिबिलिटीज ही बताती है। आपकी जो भी मेजर चेंजेस है लाइफ में, वो सब फाइनल जो भी चीजें हैं, वो डिवाइन सोर्स को पता होता है, सिर्फ यूनिवर्स को पता होता है। सो आई वुड से दैट you shouldn't be so much relying on anything. Think before you do something, and just remember that your final destination, whatever it is only known to the universe. So I would say that think before you do. And as you all know, this is a collective and timeless reading. It is open for all and all the situations, not gender specific. And as it is timeless, it will be like whenever it go through your screen, whenever it rolls up your screen, it will still match your energy because it is timeless. And as it is a collective reading, I would really suggest is that take whatever resonates to you and leave the rest. Don't try to fit in every situation which is not yours. Rest today will do the reading about you versus them reading, and next 48 hours, like what are your current feelings and thoughts for your person, what is your person's current feelings and thoughts for you. We'll see one by one, and then we'll see for next 48 hours how it will be for you both, and we'll take few channel messages from your person at last. So let's do today's reading. Again, if there's somebody new to this channel, please don't forget to subscribe the channel. प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। अभी हम पहले आपकी फीलिंग्स देखेंगे कि आपकी फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए क्या है, मेरे व्यूअर्स की फीलिंग्स उनके पर्सन के लिए क्या है। ओके, 10 of Wands. First, we are gonna see what my viewers' feelings are towards their person. Then we'll go for your person's feeling towards you. So here what I can see is definitely the first thing what I feel like, आप लोग थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं बर्डन फील कर रहे थे किसी चीज को लेकर, बट अभी धीरे धीरे उस बर्डन से बाहर आना चाहते हैं। We'll see more. King of Pentacles, 5 of Cups. Okay. Okay. 5 of Cups, Page of Swords,
Ten of Pentacles and Queen of Wands. एंड बैक ऑफ द सिचुएशन व्हिच आई कैन सी इज हैंग्ड मैन की एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि मे बी सिचुएशन थोड़ी सी अभी स्टक हो. दिस इज व्हाट आई कैन सी कि थोड़ा बहुत स्टकनेस हो सकता है सिचुएशन में. वन मोर थिंग आई कैन सी हियर इज, जैसे कि मैंने बोला, लाइक द एंड ऑफ द डेक इट वाज, what I saw is hangman energy. The situation is some sort of stuck now, is not moving ahead. Maybe that's why your energy is like you're feeling burdened, which I feel burdened in case like what to do now. You're not getting the idea that what step you should take. आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपको कौन सी डायरेक्शन चूज करनी है अभी. आप अपने ही लाइक पर्सनल इश्यूज में इतना ज्यादा बर्डन हो गए थे कि आपको समझ नहीं आ रहा था आपको क्या करना है. ठीक है, तो आपकी करंट एनर्जी ये है कि आप अपने पर्सन को बहुत ज्यादा प्यार तो करते हैं. कॉज लवर्स का कार्ड इट इज द कंफर्मेशन, कहीं ना कहीं ये कंफर्मेशन है कि आप बहुत ज्यादा प्यार करते हो एंड दैट इज लाइक जेन्युइनली यू लव द पर्सन. आप उन्हें एज अ किंग ऑफ पेंटिकल्स देखते हो, मतलब लाइक वो हर चीज आपकी फुलफिल कर सकते हैं या करते हैं, आप ये देखते हो. यू यूज टू see him or her like that person can fulfill all your desires, and you know that maybe they have already fulfilled few of your desires which you see. You really love them, which I can see here. Current feelings is that, but you are somehow burdened that you are already burdened with other things that you didn't give a lot of time. So now you are like thinking how I should take the step to fix on the things. कहीं न कहीं शायद दोनों की एनर्जी में मुझे वो बर्डन वाली चीज़ दिख रही है, जिसकी वजह से शायद लेस कॉन्टैक्ट आया हो या फिर थोड़ा बहुत बिज़ी स्केड्यूल आया हो. एंड यू आर मिसिंग देयर एनर्जी नाउ, यू आर मिसिंग द पास्ट मोमेंट्स व्हिच यू शेयर्ड टुगेदर. मुझे ये दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो उन्हें. करंट एनर्जी आपकी यही है कि आप जो पास्ट मोमेंट्स आपने दोनों ने शेयर किया है, आपके जो इवेंट्स हुए हो या जो भी आपने एंजॉय किया हो साथ में, आप वो सारी चीजें अभी बैठ के मिस कर रहे हो, सोच रहे हो. दिस इज व्हाट कमिंग हेयर. एंड पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है, आप उन्हें रीच आउट करना चाहते हो एंड उस बारे में सोच रहे हो कि मुझे क्या करना चाहिए और किस तरह से मुझे वो स्टेप लेना चाहिए. देन पेज ऑफ स्वर्ड्स की एनर्जी है, कहीं ना कहीं यू आर ट्राइंग टू रीच देम आउट डेफिनेटली, but then the thing is you're somehow like fickle mind, I can say. I mean, you're not stable, that you're just thinking to take the step, but then you're getting busy somewhere else. मतलब आप सोच तो रहे हो उन्हें कांटेक्ट करो, उन्हें लाइक बात करो उनसे, बट कहीं ना कहीं आपको कुछ और काम आ जा रहा है एंड यू आर गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड. तो आपको कहीं ना कहीं आई फील लाइक टाइम निकालना होगा एंड यू हैव टू टॉक टू दैट पर्सन. मुझे ये फील हो रहा है यहाँ पे. टेन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है. Ten of Pentacles energy is here, like you want to settle down with that person finally, like you want to build a family with them, which I can see here. You want to take the responsibility of the family, you want to settle down with them, you want to have family with them, which I can see. आप उनके साथ सेटल करना चाहते हो, आप उनके साथ फैमिली बनाना चाहते हो, मैरिज करना चाहते हो, ये मुझे नजर आ रहा है यहाँ पर. But definitely the thing is you have to be consistent and constant about it. Like आपको efforts डालने होंगे इस चीज में. I know that everybody is busy, यार busy तो सबको ही रहता है, but we have to take a few time out for somebody. अगर हम किसी को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं या वो हमारी प्रायोरिटी में है, तो हमें उनके लिए थोड़ा बहुत टाइम भी निकालना होता है. लाइक वी आर ऑलरेडी बर्डन, वी नो, बट हमें थोड़ा बहुत टाइम तो निकालना होता है. दिस इज व्हाट इज नीडेड इन दिस रिलेशन, व्हिच आई कैन सी. Like your energy now is like you are feeling that thing, that you have already done a lot about that burden thing, but now you have to take step forward. आप already काफी ज्यादा अपने burdens का सोचकर
अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ये वाली है आपके पर्सन के रिगार्डिंग, आप उस चीज को कहीं ना कहीं लैग कर रहे थे, बट आपको अभी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी, ये चीजें दिख रही है। एंड इसीलिए ये आया दैट यू हैव टू टेक योर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दिस पर्सन ऑल्सो, एंड देन जाके कहीं ये अच्छे से बैलेंस हो सकता है। This will get balanced after you taking the responsibility well, and then you can proceed this relation. ये जो hanged man वाली एनर्जी है ये दूर हो जाएगी, स्टकनेस दूर हो जाएगी। बट डेफिनेटली यू लव योर पर्सन, दिस इज व्हाट आई कैन सी वेरी वेल। आप अपने पर्सन को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं एंड जेन्युइनली करते हैं प्यार, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, ये चीजें मुझे नजर आ रही है रीडिंग के दौरान। बट आपको वो चीज डायरेक्ट उनको मतलब ये भी करनी होगी, लाइक उन्हें फील भी करानी होगी दैट यू आर मेकिंग देम प्रायोरिटी एंड दे आर गोइंग टू बी योर प्रायोरिटी इफ यू आर थिंकिंग ऑफ सेटलिंग डाउन। नाउ विल सी फॉर व्हाट आर योर पर्सन्स करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स फॉर यू। आपके पर्सन की करंट फीलिंग एंड थॉट क्या है आपके लिए। उन्हें बहुत ज्यादा ट्रैप्ड फील हो रहा है, आई फील लाइक एट ऑफ स्वर्ड्स के साथ उन्हें बहुत ज्यादा ऐसा लग रहा है कि वो किस तरह से इस प्रॉब्लम से बाहर आए, किस तरह वो चीजें आपको लाइक समझाएं, ये वाली एनर्जी आ रही है आपके पर्सन की। वो आपको क्वीन ऑफ पेंटिकल्स समझते हैं इस एनर्जी में, मे बी इट्स अ गर्ल इट्स अ बॉय, लाइक इट डजेंट मैटर। वहां पे हमें ज्यादातर कप्स की एनर्जी नजर आई है एंड हमें पेंटिकल्स की भी एनर्जी नजर आई है। सो मोर ओवर आई विल से इन while I was doing your reading, it was more over the signs mentioned are Taurus, Virgo, Capricorn and कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। ये एनर्जीज मुझे ज्यादातर लग रही थी आपके रीडिंग के टाइम में। अभी भी काफी एनर्जीज आएंगी यहाँ पर। लेट्स सी व्हाट इज कमिंग अहेड हियर। ओके, आई फील लाइक मोर ओवर योर पर्सन इज सम सॉर्ट ऑफ ना हर्टफुल एनर्जी। आपके पर्सन बहुत ज्यादा हर्ट है अभी। हर्ट इन सेंस आई वुड से कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि अगर वो जेन्युइनली आपसे प्यार कर रहे हैं, आपको अपना पूरा टाइम दे रहे हैं, देन फिर इस तरह से चीजें क्यों हो रही है कि उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करे। मतलब उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है कि उन्हें आप टाइम क्यों नहीं दे रहे हो। मे बी दे आर अंडरस्टैंडिंग, उन्हें समझ में आ रहा है कि आपके पास दूसरी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जिसकी वजह से आप बीच बीच में थोड़ा ज्यादा बिजी हो जाते हो। बट डेफिनेटली ये भी आपका एक कनेक्शन है एंड आप इनके साथ सेटल करना चाहते हो, तो थोड़ा बहुत टाइम आपको इनके लिए निकालना ही होगा। एंड अगर आप टोटली बिजी हो रहे हो चीजों में, तो दे वांट टू से दैट दे आर वेरी हर्ट नाउ। उन्हें समझ नहीं आ रहा है वो क्या करे। दे आर ट्रैप्ड कि उन्होंने तो कुछ नहीं कर दिया जिसकी वजह से आप बात नहीं कर रहे हो या स्टक एनर्जी है। वो ये सोच रहे हैं कि उनसे तो कुछ नहीं हो गया एंड देयर सम लाइक देयर लैक ऑफ डायरेक्शन। उन्हें अभी कुछ समझ नहीं आ रहा है कि वो एक्शन क्या ले। अभी कुछ वो एक्शन लेने के मतलब they are not in the condition to take any kind of action now, like they are very hurt, they are very hurt now। they want to work for this relation। वो चाहते हैं कि ये रिलेशन बहुत अच्छे से वर्क करे, बट कहीं ना कहीं दे आर लाइक नॉट इन द कंडीशन टू टेक स्टेप फॉरवर्ड। अभी वो स्टेप नहीं ले पा रहे हैं आगे, बिकॉज दे आर थिंकिंग कि अभी वो क्या करे, किस तरह से करे। बट डेफिनेटली दे लुक यू एज अ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। वो आपको एक ऐसा फिगर देखते हैं अपने लाइफ में जो नॉट ओनली उनके फैमिली को संभाल सकता है, बट ऑलमोस्ट लाइक एवरीथिंग दे कैन जस्ट फुलफिल this they can see। but you know what, that your person is definitely having a lot of options for them। कहीं ना कहीं आपके पर्सन इस वजह से भी सैड है कि उनके पास ऑप्शंस तो बहुत है, ऐसा नहीं है ऑप्शंस नहीं है। मे बी उनकी फैमिली, आई फील लाइक मुझे ये चीज यहाँ पे रिकॉल हो रही है, लाइक मुझे यहाँ फील हो रही है बहुत स्ट्रांगली कि उनकी फैमिली और फ्रेंड्स
उन्हें काफी ऑप्शंस उनके थ्रू मिल रहे हैं उन्हें, बट वो बहुत ज्यादा यहाँ पे आप देख सकते हो, ये बहुत ज्यादा सैड है यहाँ पे, दैट दिस गर्ल इज हैविंग अ लॉट ऑफ ऑप्शंस, बट स्टिल दैट गर्ल इज सैड. सो आई फील लाइक योर पर्सन्स एनर्जी इज सम सॉर्ट ऑफ दिस, कि उनके पास ऑप्शंस काफी हैं, बट कहीं ना कहीं वो आपसे इतना ज्यादा प्यार करते, इतना ज्यादा अटैच है, इतनी ज्यादा आपकी फिक्र करते हैं, दैट वो दूसरे ऑप्शंस पे ध्यान ही नहीं दे रहे हैं. एंड जब आप अभी बिजी हो, बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे हो उन पे थोड़ा, तो दे आर लाइक लिटरली हर्ट कि व्हाट आई शुड डू नाउ, अभी मुझे क्या करना चाहिए. सो दे आर लाइक लिटरली दे हैविंग अ लॉट ऑफ ऑप्शंस, बट still they are looking for you, they looking for reach out to you. So I feel like you both have to come in a same page first of all to work this relationship out. आपको बैलेंस्ड होना पड़ेगा दोनों को, अगर आप चाहते हैं ये रिलेशन बहुत अच्छे से वर्क करे, क्योंकि आपके पर्सन की एनर्जी में भी ये आया है कि वो पास्ट इवेंट्स जो भी आपने एंजॉय किया हो साथ में, जो भी मोमेंट्स आपने लाइक एक ख्वाब की तरह देखा हो या एंजॉय किया हो, वो सारा वो अभी रिकॉल कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं. दिस इज व्हाट कमिंग इन हियर. वो चाहते हैं कि वो सारी चीजें दोबारा से हो. दिस इज कमिंग हियर दैट दे आर मिसिंग द पास्ट एनर्जीज which you both really enjoyed together, the moments you enjoyed together, and the same thing came in your energy as well. कहीं ना कहीं दे आर मैनिफेस्टिंग यू, वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं बहुत ज्यादा कि आप बात करो उनसे, सिचुएशन ठीक हो, कॉज दे जेन्युइनली लव यू एंड दे डोंट वांट टू लूज यू. ये आपके पर्सन की एनर्जी में आ रही है फॉर करंट फीलिंग्स, जो वो सोच रहे हैं फॉर टुडे. आपके पर्सन यही अभी फिलहाल यही सोच रहे हैं, एंड इनके यहाँ पे भी कप्स की एनर्जी मुझे ज्यादा दिख रही है. सो लाइक मे बी कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं आपके पर्सन या आप. एंड मोर ओवर लाइक आई कैन सी एयर एनर्जी एज वेल, जेमिनाई, एक्वेरियस एंड लिब्रा. मे बी आपके पर्सन या आप इन इन साइंस में से कोई हो सकते हैं, बट आई वुड से दैट, देखिए आई वुड से साइंस उतना ज्यादा मैटर नहीं करता है, स्टार साइंस पे ध्यान मत दीजिएगा. मैटर ये करता है इफ द एनर्जी मैचेस टू यू देन डेफिनेटली इट्स योर रीडिंग. स्टार साइंस यू डोंट हैव टू बॉदर अबाउट इट. बट रिमेम्बर, जब मैं जस्ट डेक क्लोज कर रही थी अबाउट दिस रीडिंग, आई सॉ 7 of Swords एट द बैक ऑफ द डेक. तो उन्हें थोड़ा बहुत क्लैरिटी दीजिए, आप अपने पर्सन से बात करिए, उन्हें क्लैरिटी दीजिए कि सिचुएशन क्या है, एंड इफ दे वांट टाइम और समथिंग, इफ यू आर बिजी समवेयर, लेट देम नो, क्योंकि वो केयर करते हैं आपकी. कॉज 7 of Swords की एनर्जी है, मे बी हो सकता है इट्स नॉट फॉर ऑल, सबके लिए नहीं होगा, बट कुछ लोगों के लिए आई फील लाइक आपके पर्सन को लगता है आप उन्हें डिसीव कर रहे हो, आप उन्हें चीट कर रहे हो, तो डोंट लेट इट हैपन. क्योंकि अगर उन्हें ऐसा लगा, देन मे बी दे कैन मूव ऑन फ्रॉम द सिचुएशन. सो जस्ट टेक योर कंट्रोल ओवर दैट एंड जस्ट लेट देम नो. उन्हें बता दीजिए कि अगर आप किसी मिड ऑफ समथिंग में हो या कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो आप बता दो उन्हें. This is what I can see. Now we'll see from other deck, like what else is coming in your relation, what else is going in your relation, and what else coming for you. Divine please guide me for my viewers and for their person. गोल्ड डिगर, मे बी मैंने बोला ना, जब तक आप क्लियर नहीं करोगे चीजें, आप कम्युनिकेट नहीं करोगे उनसे, वो कुछ भी सोच सकते हैं. ये सबके लिए नहीं होगा, कुछ कुछ लोगों के लिए है, बट मे बी दे आर थिंकिंग दे वांट योर मनी बीइंग यूज्ड. ओके, ये मुझे लगता है कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन शायद आपको मनी के लिए यूज कर रहे हैं, और कुछ लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है दैट आपके पर्सन ये सोच रहे हैं कि आप सिर्फ उनके पैसे के लिए उनके साथ हो, एंड यू डोंट लव दैट पर्सन एक्चुअली. शायद इसी वजह से आप बीच बीच में उनसे बात करते हो, फिर यू मेक सम डिस्टेंस. दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग ओवर हियर. सो आपको कम्युनिकेट करना होगा क्लियरली, ताकि बातें क्लियर हो आप लोग के बीच में, एंड कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो. ये मुझे लग रहा है यहाँ पे. और ये सबके लिए नहीं होगा, फॉर फ्यू ऑफ
the persons over here. Another thing which I see is love spell. शायद आपके पर्सन ने किया हो या आपने किया हो, काइंड ऑफ लव स्पेल और समथिंग. डेट नाइट आ रहा है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपको अभी चांस कुछ मिले टाइम स्पेंड करने का. Maybe you will get a chance to spend some time with your partner, which I can see over here. This is coming, and back of the deck I saw divorce. So maybe कुछ लोगों के लिए divorce वाली situation हो सकती है, like temporary separation also I can say. Those who are married, maybe divorce situation can come for some of you, I won't say like for all. And जो single and जो unmarried ये देख रहे हैं, उनके लिए एक सेपरेटिंग सिचुएशन आ सकती है, एक टेम्परेरी सेपरेशन आ सकता है. एंड इट्स लाइक गिव इट अ लिटिल टाइम. यू हैव टू कम्युनिकेट प्रॉपरली. आपको प्रॉपरली कम्युनिकेट करना होगा उनसे, आपको हर चीज उन्हें बतानी होगी. एंड उसके बाद आपको क्या करना है, थोड़ा टाइम देना है चीजों को बैलेंस होने के लिए एंड सारी चीजें फिक्स होने के लिए. दिस इज व्हाट आई कैन सी हियर. एंड फॉर सम ऑफ यू, फॉर बहुत कम लोगों के लिए ये होगा दैट देर इज अ थर्ड पार्टी गेटिंग इन्वॉल्व. क्योंकि देखिए, अगर आप किसी चीज को पूरा टाइम नहीं दे रहे हो, पूरा टाइम इन केस लाइक पूरे टाइम में आप थोड़ा सा टाइम अगर किसी इंसान के लिए नहीं निकाल सकते हो एंड यू वांट टू सेटल डाउन विद दैट पर्सन, देन द थर्ड पर्सन whoever it is, जो आउटर इन्फ्लुएंस होते हैं, मे बी इट्स अ फ्रेंड, मे बी इट्स अनदर थर्ड पार्टी बिटवीन यू, डेफिनेटली वो लोग एडवांटेज उठाएंगे इस सिचुएशन का. तो यू शुड बी अवेयर ऑफ दैट कि आगे जिनके लिए सिचुएशन ये नहीं है, यू शुड बी अलर्ट. आपको ये अलर्ट रहना पड़ेगा, ये सिचुएशन ना आए. और किसी किसी के लाइफ में सिचुएशन आ चुकी है, तो यू शुड बी अवेयर दैट हाउ टू रिजॉल्व दिस सिचुएशन एंड टेकिंग बैक द कंट्रोल. कन्फेशन कुछ लोगों के लिए आई फील, फॉर सिंगल्स आई फील लाइक यहाँ पे कोई न्यू आपका पार्टनर आपके लाइफ में आ सकता है. आई कैन सेंस इट. एंड कुछ लोगों के लिए ये है दोज वन रिलेशन, अगर आपके पर्सन ने अभी तक कन्फेस नहीं किया था, वो कन्फेस कर देंगे मे बी फॉर मैरिज और समथिंग. कुछ लोगों के लिए यहाँ पे लायर आ रहा है. सो मे बी उन्हें ऐसा फील हो रहा हो कि आप उनसे झूठ बोल रहे हो या आपके पर्सन आपसे झूठ बोल रहे हो. दिस इज आई कैन सी हियर. कुछ चैलेंजेस आ सकती है कि आप कोई डिसीजन लेना चाहते हो, आपको कोई यहाँ पे चैलेंज फील हो सकता है, हाउ टू जस्ट ओवरकम दिस ऑब्स्टेकल और समथिंग. बट डेफिनेटली आपको मूव तो करना पड़ेगा, कोई ना कोई डिसीजन लेना होगा. एंड उससे पहले आपको थोड़ा काम एंड कंपोज रहना पड़ेगा कि शांत रहो, शांत बैठ के सोचो एंड फिर कोई डिसीजन लो. इस तरह से आप डिसीजन आराम से ले सकते हो. बट challenges is coming for few of you I can see here. अभी हम देखेंगे कि आपकी जो पर्सन की और आपके 48 आवर्स कैसे रहेंगे. नेक्स्ट 48 आवर्स आप दोनों के बीच में किस तरह रहेंगे, कोई एक्शन लेते हुए नजर आ रहे हैं आपके पर्सन या नहीं. विल सी फॉर ऑल द थिंग्स. या अगर एडिशनल कुछ हमें पता चले दैट अगर कोई लेस टू नो कांटेक्ट में है अभी, तो आपके पर्सन वापस आएंगे या नहीं, ये सारी चीजें हम अभी देखेंगे. डिवाइन प्लीज गाइड करिएगा. ओके. सी नेक्स्ट 48 आवर्स में आई वुड से टू ऑफ स्वर्ड्स, एट ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, स्टार. स्टार की एनर्जी डेफिनेटली इट्स लाइक दे सी यू एज सम विश फुलफिलमेंट ओवर हियर. ओके. Star, Six of Pentacles, Fool, Four of Pentacles, Justice, and back of the deck, Page of Wands, and I see Five of Wands. See, in 48 hours, ये सबके लिए नहीं होगा, बट कुछ लोगों के लिए आई फील लाइक आपके बीच में थोड़ा बहुत, जैसे होता है ना, छोटा मोटा कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है.
कुछ लोगों के लिए आई वुड से दिस इज कमिंग फॉर वेरी लेस पीपल, that maybe you can have some sort of conflict between you, or like maybe it's just because of third party we can take, or maybe it's an argument between you guys. कुछ ऐसा हो सकता है, not for all, but there is definitely conflict arising, I can see. And बाकी I can see for many of you, कुछ like यहाँ पे ज्यादातर लोगों के लिए मुझे ये दिख रहा है that यहाँ आपको पहले क्लैरिटी गेन करनी होगी। आपके पर्सन को अभी क्लैरिटी ही नहीं है कि आप टाइम नहीं दे रहे हो तो क्यों नहीं दे रहे हो। तो आपको वो क्लैरिटी अपने पर्सन को देनी होगी। दिस इज व्हाट कमिंग हियर। विद इन नेक्स्ट 48 आवर्स आपको क्लैरिटी आपको देना होगा, एंड योर पर्सन इज थिंकिंग अबाउट giving more time to you, giving like thinking of doing equal give and take now. Like उन्हें ऐसा लगता है कि शायद किसी किसी को, मैं बोलूंगी सबके लिए नहीं है, बट किसी को ऐसा लगता है कि शायद उन्होंने आपको टाइम नहीं दिया या उन्होंने कुछ गलत कर दिया आपके साथ। तो अभी वो सोच रहे हैं किस तरह से रिजॉल्व करे चीजें। आई वुड से दैट गिव देम टाइम, गिव देम, गिव डू इक्वल गिव एंड टेक, दिस इज कमिंग फॉर यू। बिकॉज आपके पर्सन बहुत ज्यादा इस रिलेशन पे वर्क कर रहे हैं, वो फिक्स करना चाहते हैं चीजें नेक्स्ट 48 आवर्स में। वो कोई न्यू एक्शन ले सकते हैं। मे बी इट्स लाइक दे वुड से दैट हाउ मच दे लव यू, वो अपना कन्फेशन करेंगे इस चीज में कि वो कितना ज्यादा प्यार करते हैं आपसे। दिस इज कमिंग एज अ कंफर्मेशन, अभी हमने देखा था। एंड वो सोच रहे हैं कि दिस इज, वी कैन से दैट दे डोंट वांट टू लूज यू। वो आपको खोना नहीं चाहते, तो अब वो कोशिश करेंगे कि वो टोटली आप पे कंट्रोल करें। लाइक बोलते हैं ना कि दे डोंट वांट टू लूज यू, सो आपको शायद किसी और से बात ना करने दें, या अगर वो किसी और के साथ देखे दे विल फील जेलस और समथिंग। दिस इज कमिंग हियर। they will take control over you, and they definitely see you as wish fulfillment। आप उनके लाइफ में एक wish fulfillment हो, वो ये देखते हैं। but definitely within 48 hours they are taking action कि वो confess करें आपको ये feelings। और कहीं ना कहीं वो ये बोलेंगे कि आप इनसे बात मत करो, उनसे बात मत करो, एंड यू कैन डू दिस दैट। ये चीजें हो सकती है यहाँ पर, एंड वो जस्टिस भी करना चाहते हैं आपके साथ, एंड वो एक्सपेक्ट भी करते कि आप उनके साथ जस्टिस करो। एंड डेफिनेटली यूनिवर्स इज ऑल्सो गिविंग जस्टिस टू दिस रिलेशन इफ यू आर विलिंग टू टेक दैट जस्टिस। दिस इज कमिंग फॉर यू दैट यू हैव टू टेक स्टेप फॉरवर्ड फॉर बोथ ऑफ यू। दिस गाइडेंस इज कमिंग ओवर हेयर। एंड यहाँ पे भी हमें ज्यादातर एयर एंड अर्थ, this energies is more over coming air and earth, like more over Gemini, Aquarius, Libra, and Cancer, Pisces, Scorpio। कॉज हमने यहाँ पे कप्स की एनर्जी भी देखी थी, एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। लाइक ऑल ओवर जितना भी हमने अभी रीडिंग किया है इस टोटल आज की अभी रीडिंग में, मुझे ज्यादातर अर्थ साइंस नजर आए हैं। सो मे बी यहाँ पे दोज हु आर सीइंग फॉर दिस, आप बहुत ज्यादा डाउन टू अर्थ है, बट आप मतलब कहीं ना कहीं इतना बिजी हो जाते हो, या इतना ज्यादा ये कर देते हो, कहीं ना कहीं आप दूसरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उसको लैग कर देते हो। तो यू हैव टू टेक टोटल कंट्रोल ओवर एवरीथिंग, ये आपको गाइडेंस के तौर पे मिल रहा है। एंड नाउ वी विल सी फॉर ब्लेसिंग्स एंड फ्यू चैनल मैसेजेस। पहले हम ब्लेसिंग्स देख लेते हैं आपको क्या मिल रहा है, गॉड की तरफ से ब्लेसिंग्स क्या मिल रही है। सो दिस इज ब्लेसिंग्स ऑफ गुड हेल्थ। आपको गुड हेल्थ का ब्लेसिंग्स मिल रहा है यहाँ पर। एंड आपके पर्सन को क्या ब्लेसिंग्स मिल रही है? आपके पर्सन को ब्लेसिंग मिल रही है, बी प्रिपेयर टू रिसीव द ट्रू नॉलेज। उन्हें शायद जो भी सच्चाई है वो क्लैरिटी मिलते हुए दिख रही है मुझे यहाँ पे, भगवान जी की तरफ से, महादेव की तरफ से। एंड आपके कनेक्शन के रिगार्डिंग क्या ब्लेसिंग दे रहे हैं महादेव, चल हम ये देख लेते हैं। सो आपके कनेक्शन के रिगार्डिंग ये ब्लेसिंग आ रहा है दैट ब्लेसिंग्स ऑफ वेल्थ एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम आउटर एंड इनर डेंजर्स।
तो अगर कोई इविल आई, मतलब आपके रिलेशन में कोई इविल आई करना चाहता हो या फिर आपके रिलेशन में कोई प्रॉब्लम क्रिएट करना चाहता हो, देन आपको खुद महादेव, खुद माता रानी प्रोटेक्ट कर रही है, एंड आपको ये चीज कभी भी हार्म नहीं कर सकती है। दिस इज व्हाट कमिंग। अभी विल टेक फ्यू चैनल मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन। आपके पर्सन के चैनल मैसेजेस लेंगे आपके लिए क्या है। यू अवेकन समथिंग इन मी। आपने उनके अंदर कुछ अवेकन किया है, ये आ रहा है। आई नो वेरी वेल दैट वी आर नॉट डन येट। वो ये बोलना चाहते कि हम अभी तक, हम लोग के बीच सब खत्म नहीं हुआ है। आई थॉट वॉकिंग अवे वॉज राइट थिंग टू डू। तो उन्हें लगता है कि आगे बढ़ जाना अच्छा होगा, ठीक होगा, बट फिर उन्हें लगता है कि नहीं, हमें आगे नहीं बढ़ना चाहिए, मतलब मूव ऑन नहीं करना चाहिए इस रिलेशन को छोड़कर। आई फील योर लव अक्रॉस टाइम एंड स्पेस। सो दे फील योर लव अक्रॉस टाइम, मतलब टाइम वगैरह या कुछ भी छोड़ के उन्हें हमेशा आपकी याद आ रही होती है। आई एम ग्रेटफुल फॉर योर एनर्जी इन माई लाइफ। दे आर वेरी ग्रेटफुल कि आप उनके लाइफ में हो, आप उनके लाइफ पार्टनर बन सकते हो आगे जाके। दे सी यू एज दैट पर्सन। आई विल बिल्ड अ हैप्पी फैमिली विद यू। डेफिनेटली दे वांट टू सेटल डाउन विद यू। ये एनर्जी स्टार्टिंग से फील हो रही है। आई रिप्ले आर कन्वर्जेशन ओवर एंड ओवर। शायद किसी का यहाँ पे मुझे लगता है लेस टू नो कांटेक्ट हो या कॉन्फ्लिक्ट एनर्जी हो, जिसकी वजह से अभी वो मिस कर रहे हैं और आपकी कन्वर्जेशन को रिपीटली देख रहे हैं। I know you have the ability to shift the mountains and can do anything. उन्हें ऐसा लगता है कि आपके पास हर वो एबिलिटी है कि आप कोई भी सिचुएशन बदल सकते हो। आई एम स्टिल लर्निंग टू ओपन माई हार्ट। दे आर, अभी भी वो सीख रहे हैं किस तरह से वो और ज्यादा एक्सप्रेसिवली अपना प्यार मतलब एक्सप्रेस करें। आई पुश्ड यू अवे बिकॉज आई वॉज अफ्रेड। ये सबके लिए नहीं होगा, कुछ लोगों के लिए है कि अभी उन्हें रियलाइज हो रहा है कि उन्होंने क्यों आपको दूर जाने दिया। आई स्टिल ड्रीम अबाउट यू। अभी भी सपने देखते हैं आपके बारे में। आई हैव क्राइड ओवर यू मोर देन आई एडमिट। वो बहुत ज्यादा रोते हैं, मिस करते हैं आपको, बट बताते नहीं हैं। आई रिग्रेट नॉट टेलिंग यू द ट्रूथ। अब रिग्रेट कर रहे हैं, ये सबके लिए नहीं होगा, कुछ लोगों के लिए है कि वो रिग्रेट कर रहे हैं, उन्होंने सच्चाई नहीं बताई आपको। आवर सोल्स हैव डांस्ड थ्रू लाइफ टाइम्स। मतलब उन्हें लगता है कि आपका पास्ट लाइफ का भी कोई रिलेशन होगा। यू आर गाइडेड बाय डिवाइन टाइमिंग। तो कहीं ना कहीं आपको डिवाइन टाइमिंग पे सारी क्लैरिटी गेन हो जाएगी, ये दिख रहा है मुझे आज। सो दिस इज फॉर टुडेज रीडिंग। होप यू लव्ड इट, एंड इफ यू रियली लाइक द रीडिंग, अगर आपको रीडिंग पसंद आए, अच्छा लगे, तो प्लीज लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको कैसी लगी रीडिंग। अगर आपको पर्सनल रीडिंग्स लेनी हो, लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। You can reach out anytime you want. Rest. Thank you so much for being there with me always, like for just helping grow this journey. And अगर आपको सच में रीडिंग पसंद आए, लेट मी नो। एंड अगर आपको कोई और टॉपिक में रीडिंग चाहिए, कोई और कंटेंट चाहिए, तो आप मुझे जरूर कमेंट सेशन में बताइएगा। बाय द मीन टाइम, take care, everyone. Stay blessed and stay confident. You are so lovable. You are so confident. Stay blessed and stay abundant, I would say. So just take care, and I'll see you in the next video. And those who want maybe short questions you want to ask, then I will be live today at 10:30 or 11 p.m. at night. So that will be free tarot session, and you will be able to ask one free question and then it will be paid. So you can ask your questions over there. By so now take care and stay blessed. See you all.